Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start exercise 2.5. Today we are going to discuss question number 8. चलो बच्चे आप first question discuss करने जा रहे हैं. The first question is in a given figure side PQP and RQ. QP मतलब आ वाली है, इन्हों इस तरह ना लगे ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ S पॉइंट तक चला जाए. ठीक है. सिमिलरली R और Q ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ T पॉइंट तक चला जाए. ठीक है. सो ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ T पॉइंट तक चला जाए. then ਸਾਨੂੰ already given है कि this angle is 135 degree and this angle is 110 degree. we have to find this angle. so ਇਹ ਵਾਲਾ angle ਅਸੀਂ find out ਕਰਨਾ. how we can find this angle? so by using ਫਾਰਮੂਲਾ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ EXT. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ is equal to sum of two opposite interior angle. sum of इंटीरियर ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਂਗਲਸ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਦਿਸ ਵਨ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ PQT is equals to sum of two opposite interior angle. ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ RPQ प्लस PRQ. ठीक है. दोनों एंगल्स लिख देते. RPQ मतलब दिस एंगल, ध्यान ना देख लो बच्चे. RPQ दिस एंगल एंड PRQ मतलब दिस एंगल. क्लियर हो गया. सो ਅਸੀਂ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ. ਨਾउ एक्सटीरियर एंगल ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ 110 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SPQ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ SPQ is a line. ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਆ 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ SPR plus RPQ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. RPQ is equals to 180 degree. now what is SPR बार वाला एंगल कितना है 135. सो 135 प्लस RPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो RPQ ਨੂੰ इसी तरफ लिख दो, 135 ਨੂੰ दूसरी तरफ ले जाओ. सो आ जाएगा. ठीक है. ਇਹਦਾ मतलब RPQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 डिग्री ਚੋਂ 135 माइनस कर दो बच्चे. 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 गए 4. सो वी गेट 45 डिग्री. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है जी. ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 45. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. RPQ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ RPQ. ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ we get 110 is equals to what is RPQ. RPQ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 45 डिग्री प्लस PRQ एस सच लिखा रहन दो. सो PRQ ਨੂੰ इसी तरफ रहन दो, 45 दूसरी तरफ ले जाओ. बच्चे जो दूसरी तरफ लेके जावांगे 45 है जो नेगेटिव च चला जाएगा. सो PQR ਦਾ आंसर कितना आ जाएगा 110 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 माइनस कर दो. ठीक है. सो 10 ਚੋਂ 4 गए 6. we get 65 डिग्री. सो दिस इज द फाइनल आंसर. जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ फाइनल आंसर ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ. ठीक है. ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਂਗਲ x ਗਿਵਨ ਆ 62 ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ y ਗਿਵਨ ਹੈ that is 54.
इफ एक्स वाई सॉरी ओ वाई आ वाली लाइन और ओ जेड दिस लाइन आर बाइसैक्ट बाइसैक्ट हुंदा बच्चे दो बराबर हिस्सियां विच वंडना दो बराबर हिस्से विच वंडना ठीक है टू इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर देना इट मीनस कि आ वाला एंगल और आ वाला एंगल भी की होएगा तुहाडा इक्वल होएगा क्योंकि उन्होंने बाइसैक्ट कर रहा बाइसैक्ट मतलब आ दोनों लाइंस अगर आ एंगल एक्स आ तो दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स अगर इस तरीके ना तो अगर आ एंगल बच्चे पी आ तो दिस एंगल इज ऑल्सो पी बाई का मतलब दो सैक्ट मतलब कटना जो एक लाइन एक एंगल नू दो बराबर हिस्से विच कट दिंदा उन्होंने असीं बोल दिंदे आ बाइसैक्ट ठीक है नैक्सट देखो ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड पूरी ट्रायंगल कितनी बच्चे एक्स वाई जेड फाइंड ओ जेड वाई ओ बच्चे आ रहे हैं जेड एंड वाई इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड एक्स ओ जेड एक्स ओ जेड और असी आ वाला एंगल फाइंड आउट करना सो इसका मतलब असी आ दो एंगल्स फाइंड आउट करने आ सो ध्यान नाल बच्चे अपनी डायग्राम चेक करो डायग्राम के अकॉर्डिंगली थानू आ भी एंगल पता तो सब तो पहला तुसी जेड एंगल फाइंड आउट करो ठीक है सो सब तो पहला असी स्टार्ट की करते हैं जेड एंगल तो सो असी सब तो पहला की लिखांगे इन ट्रायंगल बच्चे पूरी ट्रायंगल चूज कर लो एक्स वाई जेड पूरी दी पूरी ट्रायंगल चूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड ठीक है जो पूरी ट्रायंगल चूज करांगे तो कला कला एंगल चूज करांगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है 180 डिग्री क्यों आ क्योंकि तुसी इत्थे रीजन देना है सम ऑफ all the angles of triangle is 180 डिग्री क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 के बराबर होंगे सो एंगल एक्स बच्चे सानू ऑलरेडी गिवन है दैट इज 62 एंगल वाई इज इक्वल्स टू 54 ठीक है बच्चे डिग्री है तो उत्ते डिग्री जरूर पाना जेड सानू नहीं पता सी जेड फाइंड आउट करना so this term now add 62 plus 52 62 और बच्चे 54 नु add करो so we get 116 degree plus angle z is equals to 180 degree so z नु इस तरफ पे आ रहन दो 116 नु दूसरी तरफ ले जाओ ठीक है so 180 दे विचों बच्चे 116 माइनस कर दिया so we get 64 it means कि एंगल Z थोड़ा कितना आ गया 64 डिग्री सो साडे को एक वैल्यू आ गई कि दिस एंगल इज 64 ठीक है जी सो हुन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो असी की होर पता करना है उन्होंने बोलिया कि ओ जेड वाई पता करो ओ जेड वाई ठीक है आ वाला एंगल पता करने लिए क्या बच्चे हुन सानू पता कि ओ जेड की है इस पूरे एंगल नू बाइसैक्ट कर रहा बाइसैक्ट मीनस दो बराबर हिस्से दे विच कट रहा है नाउ वी हैव टू फाइंड मेन एंगल्स ठीक है सो असी की कर रहे हैं सब तो पहला लिखो एक्स बच्चे असी जेड फाइंड आउट कर लिया जेड नू असी किस फॉर्म दे विच लिख सकते हैं एक्स जेड वाई ठीक है असी एक्स जेड वाई दी फॉर्म दे विच लिख सकते हैं सो दिस एंगल इज 64 डिग्री ठीक है सो 64 OZ की है बच्चे OZ उन्होंने की किया आर बाइसेक्टर OZ इज बाइसेक्टर अगर ये बाइसेक्टर है इट मीन्स कि OZY जेड़ा आ विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Z दा अध होएगा ठीक है OZX आ वाला एंगल बच्चे आ वाले एंगल दा अद्धा होएगा क्योंकि बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से च वंड रहा सो Z दा एंगल असी हुणे पता करके हटे सी 64 डिग्री सो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 वी गेट 32 डिग्री ठीक है जी साडे को एक एंगल आ गया OZY आ टर्म पता करने लिए क्या सी बच्चे आ एंगल असी एक पता कर लिया हुण रह की गया YOZ ध्यान अपनी डायग्राम
अगेन चेक करो OYZ, ठीक है। सो असी आ वाला एंगल भी सॉरी YOZ सो असी बच्चे आ वाला एंगल पता करना। आ वाला एंगल उदों ही पता होएगा, आ वाला एंगल तो सानू पता लग गया कि 32 आ, बट सानू आ छोटे वाला एंगल नहीं पता, ठीक है। छोटे वाला एंगल असी किद्दां पता कर सकते हैं? आ बच्चे पूरा एंगल सानू पता है कि 54 दा है, असी अगर हाफ कर दांगे तो साडे कोल छोटे वाला एंगल आ जाएगा। सो ध्यान नाल देखो असी की करन लगे हां। सब तो पहला लिखांगे एंगल y जिहड़ा आ, y नू असी लिख सकते हैं XYZ विच इज ऑलरेडी गिवन 54 डिग्री। सो असी लिख दिता 54 डिग्री। हुण देखो OY की आ तुहाडा बाइसैक्टर, OY की आ तुहाडा बाइसैक्टर। सो अगर OY बाइसैक्टर आ तो असी लिख सकते हैं जो एंगल OXZ आ वाला एंगल OYZ, not X, Y, OYZ which is half of only Y. So बच्चे Y एंगल थोड़ा कितना आया 54 डिग्री, ठीक है। सो 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 27। सो साडे को ये एंगल कितना आ गया OYZ, मतलब आ एंगल साडे को कितना आ गया 27। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे असीं की टर्म फाइंड आउट कीती। आ वाला एंगल कितना आ गया 32 डिग्री, ठीक है। और आ छोटा वाला एंगल कितना आ गया 27 डिग्री। कि असी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OYZ, इन ट्रायंगल OYZ एंगल ऑफ sum of three angles of triangle is triangle of triangle is 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ एंगल ऐड करन लगे। सो एंगल इज O प्लस बच्चे आ छोटा वाला एंगल कौन आ OYZ प्लस आ छोटे वाला एंगल कौन आ OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। सो असी सिंपल वैल्यूज पुट करन लगे हाँ। सो वैल्यू पुट करो बच्चे। हुण वट इज द एंगल ऑफ O, एंगल ऑफ O असी खुद पता करना, सो दी कोई वैल्यू पुट नहीं करांगे, उन्होंने असी एज सच ही लिख रहे हैं, एंगल ऑफ O नू एज सच लिखिया। नैक्सट वट इज OYZ असी हुणे फाइंड आउट करके हटे हैं 27 डिग्री। नाउ वट इज OZY, सो दिस इज एंगल 32, सो असी पुट कर दिता 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now add this both angles, so साडे को आ गया 59 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ के इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। बच्चे हुण 180 दे विचों 59 जिहड़ा आ जल्दी जल्दी माइनस करो। सो वी गेट 121 डिग्री। सो एंगल ओ कितना आ गया, एंगल ओ भी लिख सकते हैं या फिर एंगल YOZ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो आ थोड़ा बच्चे फाइनल आंसर आ गया। सो ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया 121 डिग्री। और OYZ ਦਾ आंसर ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ OZY। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। बच्चे इस पूरे वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम आई होवे तो तुसी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।